A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome to maths class. Students, till now we have completed up to chapter 7 triangles. I hope you all have completed that chapter in your copy. From today we are going to start a new chapter, chapter 8, quadrilaterals. So we'll start with the brief introduction about quadrilaterals and its types. So students, quadrilateral is basically a Greek word made up from two different words. The first word is quad and the second word is lateral. This quad means four and this lateral means sides. So we can define a quadrilateral as any closed polygon with four sides, four angles and four vertices is called a quadrilaterals. So students, here in this figure, it is made up of four sides. The sides are AB, BC, CD and AD. And the four angles are angle A, angle B, angle C and angle D. The diagonals are BD and AC. And the vertices are A, vertex A, vertex B, vertex C and vertex D. So this is a quadrilateral having four sides, four angles, four vertices and two diagonals. Okay. And just like in a triangle, the sum of all three angles is 180 degree. So similarly in a quadrilateral, the sum of angles is 360 degree. We call this property as angle sum property of a quadrilateral. So the sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, now let us discuss about types of quadrilaterals. Students, the types of quadrilaterals are as follows. The first is a trapezium. Trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel. So students, this is a trapezium A, B, C, D. Here any one pair is parallel. So we can write it like this. Here AB is parallel to CD. Okay, so this is a trapezium in which AB is parallel to CD. Students, further this trapezium can be divided in two parts, an isosceles trapezium and a scalene trapezium. In scalene trapezium, all the sides are different, and in isosceles trapezium, these non-parallel sides are equal. Okay, so in any trapezium in which AD is equal to BC, we can call it as a isosceles trapezium. Is it clear? Okay. Now the second type is a parallelogram. A parallelogram is a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel. Okay students, so in trapezium any one pair is parallel, and in a parallelogram this AB is parallel to CD, and we can write like this, AD is parallel to BC. These two opposite sides are parallel. Okay, so let's move on to the third type, which is a rectangle. A rectangle, students, is a parallelogram whose each angle is a right angle. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि ये एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. ठीक है, और इसमें स्पेशल क्वालिटी क्या होती है कि इसके ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं. ठीक है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. इज इट क्लियर? चलिए, फोर्थ टाइप, square. Square is also a parallelogram having all sides equal and each angle is equal to right angle. Students, square एक parallelogram ही होता है जिसकी सारी sides equal होती है. तो we can write it like this, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Okay, this AB, BC, CD and AD are equal, and angle A equal to angle B equal to angle C is equal to angle D equal to 90 degree. ठीक है, चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं, रोम्बस. रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है.
तो ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. दिस इज अ रोम्बस. ठीक है. लास्ट टाइप आता है स्टूडेंट्स काइट. काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर काइट को एक क्वाड्रिलेटरल कहा गया है. ये एक पैरेललोग्राम नहीं होता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब 4 साइड का कोई फिगर होता है. इट हैज 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल. यहाँ पर स्टूडेंट्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी. लाइक दिस ए डी इज इक्वल टू सी डी. ये एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट मतलब एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हो जो. तो ए डी इक्वल टू सी डी एंड दिस 2 एडजेसेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी. ठीक है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो ये एक काइट है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये इसका इंट्रोडक्शन विथ ऑल द टाइप्स आपको ये कॉपी में लिखना है. मैं ये शेयर कर दूंगी ये पेज. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स द मेन टॉपिक ऑफ योर क्लास विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम पढ़ने से पहले आपको बुक में देखना होगा, उसमें कुछ थ्योरम्स हैं. तो मैं आपको स्टूडेंट्स जो पैरेललोग्राम की 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं उस पे बेस्ड जो थ्योरम है, टोटल 8 थ्योरम है 8.8 तक. तो मैं यहाँ पर 4 थ्योरम्स आपको प्रूफ करवाऊंगी. ठीक है, तो वो 4 थ्योरम्स प्रूफ करके आपको कॉपी में लिखना है. पहले यहाँ समझेंगे हम. तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरम. द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. अगर आप प्रॉपर्टी समझ जाओगे तो एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द थ्योरम 8.1. तो थ्योरम लिखने का क्या तरीका होता है, पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन थ्योरम 8.1, फिर उसका स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ 8.1? A diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles. मतलब कोई भी पैरेललोग्राम की अगर एक डायगोनल हम कंसिडर करें तो वो उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है और ये प्रूफ करने के लिए भी आती है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज में भी है. तो हम इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे ये थ्योरम हम प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स थ्योरम प्रूफ कैसे की जाती है, पहले तो उसका पूरा स्टेटमेंट लिखा जाता है, फिगर बनाया जाता है, फिर लिखेंगे हम गिवन. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इट इज गिवन दैट दिस ABCD इज अ पैरेललोग्राम. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ये एक पैरेललोग्राम है. इसके अलावा क्या दिया हुआ है, देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं. अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सिंपली यहाँ पर एक ABCD पैरेललोग्राम दिया है एंड AC इज अ डायगोनल. इतनी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, टू प्रूफ व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल है ये इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है. दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA. ये हमें स्टूडेंट्स प्रूफ करना है कि ABC और CDA कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ. हमें पता है, हम ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ के आए हैं कि कोई भी 2 ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं 2 ट्रायंगल्स. तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए मैंने, ABC एंड CDA. ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें इक्वल है. देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. अभी हमने जब टाइप पढ़ा तो वहां पे लिखा था कि अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस AD इज पैरेलल टू BC एंड दिस AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल BCA इज इक्वल टू DAC. क्या लिखा मैंने, BCA ये वाला एंगल और DAC ये वाला एंगल, क्या ये दोनों इक्वल होंगे?
ऑब्वियसली इक्वल होंगे। हमने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल कट होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, ये भी इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पर स्टूडेंट्स इसे लिखने से पहले हमें एक और लाइन लिखनी होगी कि AC इज इक्वल टू AC, दिस इज कॉमन साइड। ठीक है, हम करने क्या जा रहे हैं, हम कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर रहे हैं। और कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, एंगल साइड एंगल, ASA कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करके। तो पहला एंगल इक्वल आ गया, फिर साइड इक्वल आ गई, फिर तीसरी ये वाली साइड एंगल लिख लीजिए। तो क्या होगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारा क्या प्रॉपर्टी हो गई, एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी we can say that triangle ABC is congruent to triangle CDA. Is it clear? ये congruent proof हो गया। तो hence proved, यही हमें प्रूफ करना था कि एक पैरेललोग्राम में जो भी एक डायगोनल होती है वो congruent ट्रायंगल में डिवाइड होती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को आप साथ साथ में अपने इसको लर्न भी करते जाइए कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमने प्रूव कर दिया और यही चीज़ें हमें आगे काम भी आएगी। ठीक है, तो ये प्रूव हो चुका है। लेट्स मूव टू द सेकेंड थ्योरम विथ थ्योरम 8.2 विच इज इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन में क्या आएगा, गिवन में वही आएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। स्टूडेंट जो थ्योरम के स्टेटमेंट में लास्ट में लिखा होता है ना, वही हमें प्रूव करना होता है। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ABCD के बराबर है एंड AD BC के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मैं यहीं से कंटिन्यू कर लूँगी, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दोनों थोड़ी ना क्वेश्चन आएंगे, आप इक्वेशन फर्स्ट नहीं डाल सकते, आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये पूरा स्टेटमेंट लिख के हम यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। ठीक है, ये पूरी लाइन आपको लिखनी होगी, कॉपी में भी आप पूरी लाइन लिख लीजिएगा। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके डायरेक्ट लिख रही हूँ कि ABC कॉन्ग्रुएंट है CDA के। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिगर देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हमें यहाँ लिख सकते हैं कि ये CPCT से AB CD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख लेंगे कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव्ड। तो आप ये मत सोचिए कि इसका प्रूफ इतना छोटा है। आपको ये एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये पूरा कॉन्ग्रुएंट फिर से प्रूफ करना होगा और फिर CPCT से आप ऐसे लिखोगे। पर कॉपी में आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखी है ना, यू विल राइट द स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट हियर कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये लाइन लिखना और फिर CPCT से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आएगा तो आप पूरा कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, जो है थ्योरम 8.4। उसका स्टेटमेंट क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूफ करना है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है, इसे भी आप याद कर लोगे कि कोई भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो गिवन क्या है हमें, अगेन एक पैरेललोग्राम गिवन है तो मैं पैरेललोग्राम लिख दूंगी। ठीक है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर,
we have to prove that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. स्टूडेंट्स ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमें क्योंकि एक पैरेललोग्राम गिवन है तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अभी हमने यूज़ किया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो यहाँ पर अगेन वो लाइन लिखोगे कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप यूज कर लीजिए, ठीक है। एंड अगेन ए डी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। इसमें रीजन दोगे आप स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वही हम वापस लिखेंगे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ठीक है। डी ए सी और बी ए सी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए बी सी नहीं आएगा, यहाँ पर बी ए सी लिखिए इसे। ये वाले एंगल की बात हो रही है ना, और यहाँ पर ए सी डी, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा है डी ए सी एंड बी सी ए, यहाँ पर बी सी ए लिखिए, ठीक है। जो एंगल्स की बात हो रही है वो वाला एंगल लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर बी ए सी है, यहाँ पर डी ए सी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये जिसमें बीच में ए आ रहे हैं ना उन दोनों को ऐड करूंगी, तो इसको इसमें ऐड करेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो। तो मैं करूंगी दोनों को ऐड, तो बी ए सी डी ए सी को ऐड करूंगी और ए सी डी को और बी सी ए को ऐड करूंगी, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट्स, जब ऐड करेंगे तो बीच वाला ए यहाँ पर मतलब ए वाले ही ऐड होने चाहिए, सी सी वाले ही ऐड होने चाहिए। अब फिगर में देख के बताइए कि बी सी ए और डी सी ए मिलके क्या बन जाएगा, बी ए सी डी ए सी, ये मिलके बन गया पूरा एंगल ए, और ए सी डी और बी सी ए ये दोनों मिलके बन गया पूरा सी। तो ए और सी इक्वल आ गए, ठीक है। एंड ये तो इक्वल आ गए, पर हमें ये भी तो इक्वल प्रूव करना है बी और डी। तो इसके लिए तो हम स्टूडेंट्स थ्योरम 8.1 का यूज करेंगे। एंड बाय थ्योरम 8.1 वी कैन से दैट थ्योरम 8.1 क्या बोलती है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए डी सी के, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। तो इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, इसको इक्वेशन फोर्थ दे दो। तो थर्ड और फोर्थ से by third and fourth we can say that हम ये कह सकते हैं कि opposite angles of a parallelogram are equal, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ करा है, यहाँ पर हमने सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, और वो यूज करके दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो वो ए और सी बन गया, और बी और डी तो हमने थ्योरम 8.1 करके का यूज करके कर लिया। इज इट क्लियर? चलिए अब चलते हैं लास्ट थ्योरम पे 8.6। 8.6 क्या है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो गिवन क्या है, अगेन हमें पास गिवन है कि अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये गिवन है। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट दिस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड दिस ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये ओ ए ओ बी ओ सी के इक्वल है और ये ओ डी ओ बी के इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर
पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। क्या लिखा मैंने? ओ डी ए ये वाला और ओ बी सी दिस वन। ओ डी ए और ओ बी सी इक्वल है, ठीक है। रीजन क्या दोगे? ए डी इज पैरेलल टू बी सी विथ ट्रांसवर्सल बी डी, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हुआ। Similarly, we can write angle OAD is equal to OCB. क्या लिखा मैंने? OAD this one is equal to OCB this one. ये दोनों भी इक्वल होगा। रीजन क्या दोगे? AD is parallel to BC। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगी विथ ट्रांसवर्सल AC, ठीक है। तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हुआ, ठीक है। तो इसे स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसे इक्वेशन सेकंड दे दो। अब मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं। उससे क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो CPCT से दिस साइड विल बिकम इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड विल बिकम इक्वल टू दिस साइड। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स दो एंगल्स तो मुझे मिल गए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तीसरी चीज कहाँ से आएगी? देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। स्टूडेंट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो ये है यहाँ पर, बट वी कैन नॉट यूज दैट प्रॉपर्टी। व्हाई? क्योंकि हमारे पास ए वाली कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, क्योंकि दो एंगल तो हम यहाँ लिख चुके हैं और तीसरा भी एंगल लिख लोगे तो ए तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि दिस एंगल, दिस साइड एंड दिस एंगल, तो ASA बन सकती है इक्वल, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब ले लेते हैं हम दो ट्रायंगल्स, तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? एंगल OAD इज इक्वल टू OCB, AD इज इक्वल टू BC। यहां पर रीजन क्या दोगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हम अभी प्रूफ कर चुके हैं पहले। और तीसरी चीज क्या लिखोगे? ODA इज इक्वल टू OBC, ठीक है। यहाँ पर प्रूव्ड अबव लिख सकते हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्पेस कम है, मैं बस ASA हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। और ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बाय CPCT वी कैन राइट OA इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। CPCT ऐसे आप लिख लीजिएगा लास्ट में। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा? हमने क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा, उसके टाइप्स देखे। इसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, मैं आपको शेयर कर दूंगी पिक। और फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देखी, उसमें हमने 4 मेन प्रॉपर्टीज पढ़ी है और उसके थ्योरम के प्रूफ देखे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में, जूम क्लास में, हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करेंगे उसे आप हैंड टू हैंड कॉपी में नोट डाउन करोगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड लर्निंग।